गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है इनएक्शन। इनएक्शन का मतलब होता है किसी तरह की निष्क्रियता होना, इनएक्टिविटी, उसे बोला गया है इनएक्शन। इफ यू रेफर टू समवंस इनएक्शन यू डिसअप्रूव ऑफ द फैक्ट दैट दे आर डूइंग नथिंग। Synonyms are inactivity, inertia, idleness, passivity. Antonyms are action or activity. Intervention, the act of intervening as to mediate a dispute. Intervention का मतलब दो तरह से लिया जा सकता है, किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना या फिर मध्यस्थता करना, बीच बचाव करना, उसे भी बोला जाता है इंटरवेंशन। Synonyms are interference, intercession, interposition, intrusion. Antonyms are non-interference, non-intervention, challenge or advantage. Legislative. Legislative means involving or relating to the process of making and passing laws. Legislative का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कानून का निर्माण किया जा रहा है तो कानून बनने से संबंधित उसे बोला गया है legislative. Synonyms are legislation, legal, lawmaking, parliamentary, judicial. Antonyms are unlawful, bad or banned. Legitimize, make legal, किसी चीज को वैध करना, कानूनी तौर पर सही ठहराना, उसे बोला गया है legitimize. Synonyms are legitimate, legalize, validate, authorize, sanction. Antonyms are criminalize, outlaw or disempower. Apprehension. Apprehension is a feeling of fear that something bad may happen. Apprehension का मतलब होता है किसी तरह की बुरा होने की कोई डर, किसी तरह की आशंका, भय या डर होना, उसे बोला गया है apprehension. या गिरफ्तारी होने की सेंस में भी इस वर्ड का यूज़ होता है apprehension का. Synonyms है anxiety, fear, worry, trepidation. Antonyms है confidence, calmness, ease or peace. Encroaching, to use more of something that you should. Encroaching का मतलब होता है किसी की ज़मीन पर या किसी के अधिकारों को ज़बरदस्ती छीन लेना, हड़प लेना, सीमा लांघना या उल्लंघन करना, उसे बोला गया है encroaching. Synonyms है trespassing, invasive, intruding, infringe, impinge. Antonyms है unintrusive, advantage, add, avoid or ignoring. Consequence, something that happens or follows as a result of something else. Consequence का मतलब होता है किसी भी काम के परिणाम आना, नतीजे या फल, outcomes, उन्हें बोला जाता है consequence. Synonyms है impact, effect, result, outcomes. Antonyms है antecedents, beginning, origin or reason. Decriminalize, when a criminal offense is decriminalized the law changes so that it is no longer a criminal offense. Decriminalize का मतलब होता है किसी चीज़ को वैध ठहराना, कानूनी तौर पर उचित ठहराना, उसे बोला गया है decriminalize. Synonyms है legitimize, legalize, authorize, permit, license. Antonyms है criminalize, illegalize और deny. Homosexuality. होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है समलैंगिकता, सेक्सुअल अट्रैक्शन टू और सेक्सुअल रिलेशंस विद पर्सन ऑफ द सेम सेक्स, उसे बोला गया होमोसेक्सुअलिटी. होमोसेक्सुअलिटी के सिनोनिम्स है गेनेस, बाइसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, फेमिनिटी. एंटोनिम्स है वर्जन और एनिमोसिटी. कंटेंट्स, if you contend that something is true, you state or argue that it is true. Contents का मतलब होता है किसी बात के सही होने का दावा करना, उसे बोला गया है contents. Synonyms है argue, assert, fight, maintain. Antonyms है agree, surrender, deny और abandon. Heteronormative. Heteronormative, suggesting or believing that only heterosexual relationships are normal or right and that men and women have naturally different roles. Heteronormative का मतलब होता है विपरीत सेक्स से संबंधित, विषम लैंगिक,
उसे बोला गया है हेटेरोनॉर्मेटिव। सोलेमनाइजेशन, सोलेमनाइजेशन नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सोलेमनाइजेशन का मतलब होता है विवाह, किसी तरह का विवाह का जो अनुष्ठान होता है या उत्सव होता है, विवाह का जो फंक्शन होता है, उससे बोला गया है सोलेमनाइजेशन। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ सोलेमनाइजिंग अ मैरिज, परफॉर्मिंग द ऑफिशियल सेरेमनी। ऑफिशियल सेरेमनी सिनोनिम्स है सेलिब्रेशन, ऑब्जर्वेंस, एनिवर्सरी, commemoration or jubilee. Antonyms है failure, affliction और anguish. Consensual, a decision, agreement, idea, etc. about which people in general agree. Consensual का मतलब होता है जिस पर लोगों की आम सहमति हो, सर्वसम्मति होना, रजामंदी होना किसी तरह की, उसे बोला गया है consensual. Synonyms है agreed, accordant, consistent, consentant और concerted. Antonyms है clashing, conflicting और contradictory. Stigma, if something has a stigma attached to it, people think it is something to be ashamed of. स्टिग्मा का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई लांछन, बुरी बात, कलंक या दाग धब्बा, उससे बोला गया है स्टिग्मा. सिनोनिम्स है डिसग्रेस, स्टेन, शेम, ब्रांड और मार्क. एंटोनिम्स है प्राइड, ऑनर, डिग्निटी और क्रेडिट. कंफर्ड, to discuss something with somebody before making a decision. conferred दो तरीके से यूज़ होता है, समझ लीजिएगा. एक conferred तो होता है किसी डिसीजन देने से पहले आपस में सोच विचार करना, विचार विमर्श करना. दूसरा होता है conferred का मतलब किसी को उपाधि से तमगा देना, किसी को उपाधि देना किसी चीज़ की, उसे भी उपाधि से नवाजा जाना किसी को, उसे भी बोला जाता है conferred. सिनोनिम्स है consulted, discussed, bestowed, granted. Antonyms are dishonored, ignorance or denied. Heterosexual, a heterosexual relationship is a sexual relationship between a man and a woman. Heterosexual का मतलब होता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, उसे बोला गया है heterosexual. Synonyms है amorous, hurt, straight, nuptial. Antonyms है gay, bisexual, lesbian और homosexual. Discrimination, discrimination is the practice of treating one person or group of people less fairly or less well than other people or groups. Discrimination का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, उसे बोला गया है discrimination. Synonyms है discernment, judgment, prejudice, bias. Antonyms है fairness, indifference, justice और acceptance. Succession, सक्सेशन का मतलब होता है क्रम की दृष्टि से सिलसिलेवार होना, क्रमबद्ध तरीके से होना, बढ़ते रहना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है सक्सेशन. अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स दैट फॉलो ईच अदर इन टाइम और ऑर्डर, अ सीरीज. सिनोनिम्स है सीरीज, सीक्वेंस, चेन, प्रोग्रेशन. एंटोनिम्स है abeyance, हिडन, जम्बल और tangle. Insurmountable, a problem that is insurmountable is so great that it cannot be dealt with successfully. Insurmountable का मतलब होता है ऐसी समस्या, ऐसी कठिनाई जिसका समाधान करना बेहद मुश्किल हो, संभव हो, उसे बोला गया है insurmountable. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं insuperable, impassable, invincible, unbeatable. एंटोनिम्स है surmountable, attainable, conquerable और vulnerable. Invoking, to mention or use a law, a rule, etc. as a reason for doing something. Invoking का मतलब होता है किसी भी तरह के कानून या नियम को प्रयोग में लाना, यूज करना उसे, that is called invoking. Synonyms है conjured, summoned, enforced, enforced, call or implored. Antonyms है annihilated, broke or concluded. Futile, used about an action having no success or useless, that is called futile. Futile का मतलब होता है व्यर्थ में ही किसी चीज़ की कोशिश करना, असफलता मिलना, बेकार में ही, व्यर्थ में ही कोई कार्य करना जिसका कोई मतलब ही ना निकलता हो, that is called futile. Synonyms है useless, pointless, vain, ineffective, worthless.
एंटोनिम से प्रोडक्टिव, यूजफुल, फ्रूटफुल, हेल्पफुलनेस और एफिशिएंट। सोसाइटल, सोसाइटल मीन्स रिलेटिंग टू सोसाइटी और टू द वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड। सोसाइटल का मतलब होता है समाज से संबंधित, सामाजिक, उसे बोला गया है सोसाइटल। सिनोनिम से सोशल, कम्युनल, सोसाइटी, कम्युनिटी, कलेक्टिव और कॉमन। एंटोनिम से आउटकास्ट, अनसोशल, क्लासिफाइड और कंसील्ड। mere, used for emphasizing how small or unimportant something is, और nothing more than। mere का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचा दिखाना या कम आंकना, किसी चीज़ को मात्र, केवल मात्र, से अधिक नहीं, उसे बोला गया है mere। सिनोनिम से सिंपल, प्लेन, जस्ट, ओनली, ऑर्डिनरी, सिंपली। एंटोनिम से पावरफुल, ब्लाइटेड और एक्सट्रीम। sacrament, a sacrament is a Christian religious ceremony such as communion, baptism और marriage। sacrament का मतलब होता है किसी तरह का कोई रिचुअल, जो संस्कार होता है उसे बोला गया है sacrament। सिनोनिम से rite, ceremony, ritual, communion और service। एंटोनिम से divorce, abortion, blindness, denial और disarray। proposition, a proposition is a statement or an idea that people can consider or discuss to decide whether it is true। proposition का मतलब होता है किसी तरह का कोई योजना, प्रस्ताव या कोई सुझाव, सजेशन, उसे बोला गया है proposition। सिनोनिम से proposal, suggestion, thesis, proffer, plan। एंटोनिम से refusal, denial, opposition और condemnation। seeds, if someone in a position of authority cedes land or power to someone else, they let them have and land or power, often as a result of military or political pressure। सीड का मतलब होता है किसी को अपनी पोजीशन, पावर्स को सौंप देना या आत्मसमर्पण कर देना, गिव अप करना, उसे बोला गया है सीड। सिनोनिम से यील्ड, सरेंडर, रिलेंक्विश, अबंडन, ग्रांट। एंटोनिम से डिफेंड, रिटेन, फाइट और बियर। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़रा सा भी आपको कंटेंट फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम कम से कम 40+ वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स थे आज दोनों एडिटोरियल में, तो 40+ ये वर्ड्स हैं। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है अनअसेलेबल। अनअसेलेबल मीन्स इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग और समवन एज अनअसेलेबल, you mean that nothing can alter, destroy or challenge them। unassailable का मतलब होता है अपराजेय होना, जिसे कोई हरा ना सके, उसे बोला गया है unassailable। सिनोनिम से impregnable, inviolable, invulnerable, invincible, indisputable। एंटोनिम से vulnerable, contestable, undefended और defenseless। reiterated, if you reiterate something, you say it again, usually in order to emphasize it। reiterated का मतलब होता है किसी बात को बार बार दोहराना, बार बार कहना, उसे बोला गया है reiterated। सिनोनिम से reaffirmed, repeated, restated, renewed। एंटोनिम से no more, never ever, in no respect। verdict, in a court of law, the verdict is the decision that is given by the jury or judge at the end of a trial। किसी भी तरह का कोई फैसला सुनाना, डिसीजन देना, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। सिनोनिम से डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। टसल, इफ वन पर्सन टसल्स विद अनदर और इफ दे टसल दे गेट होल्ड ऑफ ईच अदर एंड स्ट्रगल और फाइट। टसल का मतलब होता है किसी भी छोटी मोटी बात पर आपस में किसी तरह की लड़ाई होना, संघर्ष होना, लड़ना, उलझना, उसे बोला गया है टसल। सिनोनिम से स्ट्रगल, फाइट, बैटल, स्कर्मिश। एंटोनिम से एग्रीमेंट, काम, हार्मोनाइज और कंसेंसस। बर्थ, बर्थ का मतलब तो वैसे होता है जहाज़ या जो ट्रेन में सीट सोने के लिए यूज़ की जाती है, उसे बर्थ बोला जाता है। यहाँ पे अपनी जगह पक्की करने की सेंस में ये वर्ड यूज़ किया गया है। कहीं पे किसी ने कोई जगह पक्की कर ली है, उसे बोला गया बर्थ। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स देख लीजिएगा। प्लेसिड, a placid place, area or water or life is calm and peaceful। प्लेसिड का मतलब होता है बिल्कुल शांत होना, मुलायम, सॉफ्ट, एकदम सौम्य, शांत, उसे बोला गया है प्लेसिड।
सिनोनिम से ट्रैंक्विल, काम, सेरेन, पीसफुल और क्वाइट। एंटोनिम से एजिटेटेड, एक्साइटेड और एंग्री। इनएविटेबल, ऐसा काम जो होकर ही रहेगा, जिसे टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, उसे बोला गया है इनएविटेबल। सिनोनिम से अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, सर्टेन, नेसेसरी और इनएक्सोरेबल। एंटोनिम से अवॉइडेबल, एविटेबल, प्रिवेंटेबल और अनश्योर। कंटेंडर, अ कंटेंडर इज समवन हु टेक्स पार्ट इन अ कंपटीशन। कंटेंडर का मतलब होता है किसी भी प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाला प्रत्याशी होता है, प्रतियोगी होता है, उसे बोला गया है कंटेंडर। सिनोनिम से कंपिटिटर, राइवल, चैलेंजर, कंटेस्टेंट, एडवर्सरी। एंटोनिम से सपोर्टर, साइडकिक और एली। meander, you meander somewhere, you move slowly and not in a straight line। meander का एडिटोरियल में जो मतलब लिया गया है वो लिया गया है किसी तरह का भटकना कहीं पे, मतलब अपने टारगेट में बिल्कुल मन ना लगना, दिशाहीन होना एकदम, या घुमावदार, उसे बोला गया है meander। सिनोनिम से wanderer, bend, ramble, twist, drift, stroll। एंटोनिम से bolt, dash और stay। stalemate, a situation in an argument in which neither side can win or make any progress। stalemate का मतलब होता है किसी भी काम में बिल्कुल भी प्रोग्रेस ना कर पाना, गतिरोध की स्थिति या फिर अवरोध की स्थिति, उसे बोला गया है stalemate। सिनोनिम से डेडलॉक, इम्पैस, स्टैंड स्टिल, स्टैंड ऑफ। एंटोनिम से प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे और एडवांसमेंट। क्वेस्ट, अ क्वेस्ट इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट सर्च फॉर समथिंग। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में खोजबीन करना, तलाश करना, सर्च करना, उसे बोला गया है क्वेस्ट। सिनोनिम से सर्च, हंट, सीक, मिशन, एक्सप्लोरेशन। एंटोनिम से रिट्रीट, एस्केप, बोल्ट और कवर। ट्रायम्फ, अ ट्रायम्फ इज अ ग्रेट सक्सेस और अचीवमेंट, often one that has been gained with a lot of skill or effort। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी भी तरह की सफलता मिलना, जीत मिलना, विजय हासिल करना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। सिनोनिम से सक्सेस, विक्ट्री, सक्सीड, विन। एंटोनिम से डिफीट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल और लॉस। इन अ गुड स्टेड, इन अ गुड स्टेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए लाभदायक हो, फायदेमंद हो, लाभदायक होना, उसे बोला गया है अच्छी स्थिति में होना, that is called in a good stead। If you say that something will stand someone in good stead, you mean that it will be very useful to them in the future। Deteriorating, if something deteriorates, it become worse in some way। स्थिति का और ज़्यादा से बिगड़ जाना, बद से बदतर हालात हो जाना, उसे बोला गया है deteriorating। Synonym से decline, degenerate, worsen और frail। Antonym से improve, recover, develop और better। Augur, if something augurs well or badly for a person or a future situation, it is a sign that things will go well or badly। ऑगर का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना होने वाली है, अच्छी या फिर बुरी, उसके बारे में पहले ही बताना, पूर्व सूचना देना, भविष्य बताना, उसे बोला गया है ऑगर। सिनोनिम से पोटेंट, बोर्ड, फोरटेल, प्रेडिक्ट और फोरकास्ट। एंटोनिम से इग्नोर, कंसील, डिसमिस और डिसरिगार्ड। शोर अप, if you shore up something that is weak or about to fail, you do something in order to strengthen it or support it। shore up का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मजबूती प्रदान करना, सहारा प्रदान करना, strengthen करना उसे, that is called shore up। synonym से support, reinforce, bolster, strengthen। antonym से abandon, exterminate, suppress और decrease। thrive, if someone or something thrives, they do well and are successful, healthy और strong। thrive का मतलब होता है किसी की लगातार प्रोग्रेस करना, किसी में लगातार प्रोग्रेस होते रहना, प्रगति करना, किसी की लगातार सफलता मिलते रहना, किसी को आगे बढ़ते रहना, प्रोग्रेस होते रहना, डेवलप होते रहना, फलना फूलना, उसे बोला गया है थ्राइव। सिनोनिम से फ्लरिश, प्रॉस्पर, सक्सीड, बर्जन और ग्रो। एंटोनिम से फेल, कलैप्स और फ्लॉप। लर्किंग, ये लास्ट वर्ड है आज का। लिंगरिंग एंड परसिस्टेंट दो अनएक्सपेक्टेड और अनअक्नॉलेज्ड। लर्किंग का मतलब होता है एकदम से स्टैग्नेशन की स्थिति होना, बिल्कुल छुपा हुआ, एकदम मंडराते रहना, एकदम एक जगह पे स्टक हो जाना या छुपना, छुपा हुआ, गुप्त, उसे बोला गया लर्किंग। सिनोनिम से एम्बुश, हाइडिंग,
लेटेंट, स्नीकिंग और स्टीलिंग, एंटोनिम्स अपियरेंट, डू और एविडेंट। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज हुए होंगे और कुछ एक वर्ड्स आपने नए भी सीखे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।